تجارت یا دفاعی معاملات، پاکستان اور چین ہر دم ساتھ ساتھ۔ وزیر اعظم کے دورہ چین پر میزبان صدر نے کیا کھل کر اظہار، بولے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے، مسئلہ کشمیر پر بھی پاکستان کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی بھی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کہا چین پاکستان کا آئرن برادر، ثابت قدم اتحادی اور شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی نیشنل پیپلز کانگریس کے چیئرمین لی زہان شو سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور پاک چین تعلقات پر تبادلہ خیال۔ چین سے واپسی پر وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب اور ایران جانے کا بھی امکان۔ تاجروں نے کاروبار چھوڑ کر احتجاج کا علم تھام لیا، ہزاروں تاجروں کا اسلام آباد میں ایف بی آر آفس کی جانب مارچ، پولیس نے سرینا چوک پر روک لیا۔ مذاکرات کے بعد تاجر گھروں کو واپس، 28 اور 29 اکتوبر کو ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ کراچی میں 111 شہریوں کا قاتل عرفان قانون کے شکنجے میں آ گیا، تعلق ایم کیو ایم لندن سے ہے۔ ایس ایس پی ایسٹ کی پریس بریفنگ، کہا ملزم نے کئی خواتین کا ریپ کیا، ہوس بجھانے کے بعد قتل کر دیا، ملزم پیرول پر رہا اور سانحہ 12 مئی میں بھی کچرا چننے والے افغانیوں نے قتل کیا۔ کراچی کی سڑکوں پر نامعلوم افراد دن دنانے لگے، شارع قائدین پر موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ، سب انسپیکٹر سید غوث عالم شدید زخمی ہو گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، زخمی اہلکار نے مرید عباس قتل کیس کے مفرور ملزم کی گرفتاری میں مدد کی۔ عادل زمان کو آج صبح ہی گرفتار کیا گیا تھا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں باپ بیٹے کا اندھوناک قتل، دونوں کو تیز دھار آلے سے سوتے ہوئے قتل کیا گیا۔ مقتول فصیح پی ایچ ڈی پروفیسر، بیٹا کامران چند روز پہلے امریکہ سے لوٹا تھا۔ ڈاکٹر فصیح عثمانی کی اہلیہ کا بیان ریکارڈ، گھر میں لوٹ مار کے شواہد نہ ملے۔ گٹکے کی خرید و فروخت روکنا اب رینجرز کا کام، سندھ ہائی کورٹ نے ٹاسک دے دیا۔ اراکین اسمبلی اور آئی جی سندھ کو قانون سازی کی بھی ہدایت۔ احکامات کے باوجود گٹکا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہوا، شہر کی تمام چیک پوسٹوں سے گٹکے کی اسمگلنگ روکی جائے، عدالت کا حکم۔ زندہ دلان نے لاہور کی میزبانی، کرکٹ پسپالوں کو بھا گئی، تیسرے T20 میں میدان فین سے بھر گیا، ہر شائق تیاری سے میدان آیا، کسی نے چہرے پر رنگ کرایا تو کوئی جھنڈا تھامے نظر آیا۔ اسٹیڈیم کے باہر اور اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجتے رہے۔ مسلم لیگ نون کی آزادی مارچ میں شمولیت پر مشاورت مکمل، احسن اقبال کہتے ہیں کل شہباز شریف سفارشات نواز شریف تک پہنچائیں گے، حتمی فیصلہ نواز شریف ہی کریں گے۔ اسلام آباد آئیں لیکن ضلع مجسٹریٹ سے اجازت لے کر آئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دھرنا روکنے کی درخواست پر حکم دے دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، پی ٹی آئی کو قانون کے مطابق اجازت دی، احتجاج حق ہے مگر اس سے عوام متاثر نہ ہو، درخواست قبل از وقت ہے۔ اسلام آباد لاک ڈاؤن پلان، مولانا کا 27 کی جگہ 31 اکتوبر کو اسلام آباد آنے کا اعلان، کہتے ہیں 27 کو کشمیریوں سے یکجہتی کریں گے، 31 کو اسلام آباد میں انٹری دیں گے۔ اجلاس میں دھرنے کے انتظامات پر بھی غور، احتجاج کے لیے حکومت کو بھی درخواست دے دی۔ مولانا دھرنے کے لیے اسلام آباد نہیں آئیں گے، وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کو یقین، کہتے ہیں فضل الرحمان اگر آئے تو یہ خودکشی ہوگی، مدارس کے نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے۔ محمود خان بولے کچھ فسادی امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہم شیر پکڑتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں آپ گیدڑ نہیں پکڑ سکتے۔ لاہور کی احتساب عدالت میں چودھری شوگر ملز کیس کی سماعت، مریم نواز اور یوسف عباس کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع، ریفرنس کب تک دائر کیا جائے گا، عدالت کا استفسار، نئے پروسیکیوٹر بولے ریفرنس آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، جلد دائر کریں گے۔
हुकूमत अपोजिशन का नाम और निशान मिटाना चाहती है। एक केस में जमानत ली जाए तो नए इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सईद गनी फट पड़े, कहा नए कवानीन पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एजाज जाखरानी कहते हैं ऐसी कार्रवाइयां तो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं की गईं। पाकिस्तान और भारत कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात करें, चीन ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। तर्जुमान कहते हैं पाक भारत मुज़ाकरात खित्ते और आलमी बिरादरी के मफाद में हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीन ने हमारी तारीखी पोजीशन को अपनाया। चीनी सदर दौरे भारत से कबल हमें एतमाद में लेना चाहते थे। से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। कातिल मच्छर डेंगू के वार, एक और मरीज हो गया शिकार। 48 साला जाहिद रावलपिंडी के बेनजीर अस्पताल में जेरे इलाज था। पंजाब में मजीद 162 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 55 नए केसेस सामने आ गए। कुहाट बड़ी तबाही से बच गया। रेगी शिनोखेल के इलाके से खुद को जैकेट बरामद, 10 किलो बारूदी मवाद मौजूद था। जैकेट जेरे जमीन छुपाई गई थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। पेशावर में मेट्रो बस ट्रैक पर आई नहीं, 350 साइकिल्स पहले ही पहुंच गईं। साइकिल्स के लिए 32 स्टेशंस बनाए जाएंगे। मुसाफिरों को साइकिल्स का किराया भी अदा करना होगा। जेंडर फ्रेंडली साइकिल्स मर्द और खवातीन दोनों इस्तेमाल कर सकेंगी। अमरीकी सदर की मुवाफ़क़े की तहकीकात, व्हाइट हाउस का ताउन से इनकार, तहकीकात को बेबुनियाद और गैर आईनी करार दे दिया। सदर ट्रंप पर जो बाइडेन के खिलाफ तहकीकात के लिए यूक्रेनी हुकूमत पर दबाव डालने का इल्जाम है। केमिस्ट्री का नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पर 3 साइंसदानों के नाम, तीनों ने रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज तख्लीक की। मैं आपको खुशामदीद कहेंगे, मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं लियाबत। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और चीन की। तो पाकिस्तान और चीन ने बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक कर लिया है। बीजिंग में चीनी सदर और वजीर आजम इमरान खान की बैठक के बाद दोस्त मुल्क ने एक बार फिर पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का अज़्म जाहिर कर दिया। चीन ने दो टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान के इलाकाई सलामती के लिए हिमायत जारी रखेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने भी यकीन दहानी कराई कि वो चीनी मफादात पर दोस्त मुल्क के साथ खड़े हैं। चट्टान से ज्यादा मजबूत, समंदर से ज्यादा गहरे पाक चीन ताल्लुकात कैसे हैं, चीनी सदर ने दुनिया को बता दिया। तिजारती ताल्लुकात हों या दिफाई मामलात का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें वजीर आजम ने कहा चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर, साबित कदम इत्तेहादी और शिराकतदार है। चीन ने हमेशा कौमी मफादात पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान चीनी मफादात पर उसकी भरपूर हिमायत करता रहेगा। सदर ने भी दोस्ती का पैगाम मोहब्बत से दिया। कहा मुस्तकबिल में पाक चीन ताल्लुकात मजीद गहरे और मजबूत होंगे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के लिए हिमायत जारी रखेंगे। चीन ने मसला कश्मीर पर भी पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। दोनों शख्सियात में मुलाकात में सीपैक मंसूबे की जल्द तकमील और खित्ते में अमन और सलामती के लिए एक दूसरे की हिमायत पर आमादगी जाहिर की गई। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकातों में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। चीन के दौरे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के हंगामी दौरे सऊदी अरब के लिए शेड्यूल तजवीज़ कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस और दफ्तर खारजा ने 12 और 13 अक्टूबर की तारीख तजवीज़ की है। अपडेट लेंगे आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, आगाह कीजिएगा। जी, प्राइम मिनिस्टर के दौरा सऊदी अरब के लिए मुशावरत जारी है, तैयारी की जा रही है और जैसे ही वो चीन से वापस पहुंचेंगे इस हवाले से हतमी शक्ल दी जाएगी। इस हवाले से तजवीज जो है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर 12 या 13 अक्टूबर को 1 या 1.5 दिन के लिए सऊदी अरब जाएं। इस बात का इम्कान भी है कि वो वापसी पर ईरान भी जा सकते हैं, ताहम ये सारा प्रोग्राम जो है अभी खत्म शक्ल इख्तियार नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस 1 महीने के दौरान 2 दफा सऊदी अरब जाना है। इस रवा माह के आखिर में 29 से लेकर 31 अक्टूबर को रियाज में एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर शिरकत करनी है। वो हत्ती प्रोग्राम है। ताहम जो हंगामी दौरा है उसके लिए मशावरत जारी है, तैयारियां की जा रही है और मजबूत तारीखें भी हैं। इस बात का भी इम्कान है कि 12 या
13 अक्टूबर से पहले ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के मुख्तलिफ दौरे पर जाए और सऊदी क़यादत से तारिक चौधरी आपका। और अब जिक्र ताजरों का जिन्होंने कारोबार छोड़कर एहतजाज का कलम थाम लिया। इस्लामाबाद में FBI ऑफिस की जानिब मार्च किया तो पुलिस ने सरीना चौक पर रोक लिया। FBI टीम भी मुज़ाकरात के लिए पहुंची लेकिन ताजिर ना माने। एहतजाज तो खत्म कर दिया लेकिन साथ ही 28 और 29 अक्टूबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ अशफाक मुगल से। जी बिल्कुल, आज ताजरों का एक ग्रुप जो है इस्लामाबाद पहुंचा है जिसने एहतजाजी मार्च करना था FBI की जानिब, और उसका सबसे पहला जो पड़ाव था अपारा था जहां उनका कन्वेंशन हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने एहतजाजी मार्च करने की कोशिश की FBI की जानिब, ताहम उनको रेड जोन में दाखिल होने से रोक दिया, जिसके बाद वहां ही ताजरों ने एहतजाजी धरना दे दिया। 28 और 29 अक्टूबर को मुल्क भर में शट डाउन का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ 15 अक्टूबर से टोकन हड़ताल की जाएगी जो 1 घंटे के लिए होगी। तो यहाँ से ये खबर है कि हुकूमत पाक FBI और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। जी। और अब कराची से खबर शामिल करेंगे जहां पुलिस ने गुलशन इकबाल में दौरान डकैती कत्ल होने वाली जवां साला तालिबा मिसबा के कत्ल में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने MQM लंदन के एक टारगेट किलर को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस एहलकारों और सियासी मुखालिफिन समेत 111 अफराद को कत्ल करने का इल्जाम है। मुलजिम ने मुतादिद खवातीन को भी ज्यादती के बाद कत्ल किया। मुलजिम अदालत से इश्तिहारी होने के बावजूद अब्बासी शहीद अस्पताल में मुलाजिमत कर रहा था। 3 अक्टूबर 2019 कराची में मेडिकल की तालिबा मिसबा का कातिल गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने मकतूला का मोबाइल फोन भी तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अफगान बाशिंदे हैं। ये अफगानी गैंग है, जैसे पहले दिन ही हमने बताया था, और कचरा चुनने से इन्होंने अपना काम का आगाज़ किया। फिर मुख्तलिफ औकात में ये क्राइम्स करते करते और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर ये बहुत सारे थानों में हमें दर्जनों वारदातों में मतलूब हैं। पुलिस ने दूसरी बड़ी कार्रवाई की। सुलझर बाजार से MQM लंदन का सीरियल किलर पकड़ लिया। टारगेट किलर अब्दुल सलाम इरफान उर्फ मूसा पर 111 अफराद के कत्ल का इल्जाम है। कि सुलझर बाजार पुलिस की ये कार्रवाई है जिसमें गिरफ्तार मुलजिम से एक हैंड ग्रेनेड, एक राइफल, TT पिस्टल और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मुलजिम मजमूई तौर पे 111 अफराद के कत्ल में मुलव्विस है। पुलिस ने बताया कि पहले भी पकड़ा जा चुका है। पैरोल पर रिहाई के बाद इश्तिहारी हो गया था। काशिफ फारूकी, आज न्यूज़ कराची। कराची में 111 अफराद के कत्ल में मुलव्विस MQM लंदन के खतरनाक सीरियल किलर को इश्तिहारी करार दिया गया था। ताहम इसके बावजूद उसे अब्बासी शहीद अस्पताल में मुलाजमत दी गई थी। रूपोशी के बाद ये क्या करता रहा, ये हम जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। काशिफ, बताइएगा। जी, आज कराची पुलिस की जानिब से MQM के एक और मुबैना टारगेट किलर की गिरफ्तारी का दावा किया गया है और साथ ही इंतहाई संगीन इल्जामात जो है उस मुलजिम पर आयद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक अब्दुल सलाम इरफान उर्फ मस्सा जो है वो औरंगी टाउन MQM का कारकुन है और इसने जो है वो दौरान तफ्तीश 111 अफराद के कत्ल का एतराफ किया है, जिसमें फौजी जवानों और पुलिस एहलकारों के अलावा सियासी मुखालफिन भी हैं और 5 ऐसी खवातीन भी इन मकतूलीन में शामिल हैं जो कि आबरूरेज़ी के बाद जो है वो कत्ल की गई। जबकि पुलिस का यह भी दावा है कि मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया है कि वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है 5 अफराद कत्ल के इल्जाम में, ताहम वो रिहा हो गया था। उसके बाद जब वो दोबारा गिरफ्तार हुआ तो उस पर MQM के तकरीबन 300 से ज्यादा जो कारकुनान पेरोल पर रिहा किए गए थे उसमें भी वो शामिल था। उसके बाद वो गायब हो गया था। ताहम अब पुलिस ने उसको दोबारा गिरफ्तार किया है। जी, एक और अहम खबर शामिल करें। कराची में एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने मफरूर मुलजिम आदिल जमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आदिल जमान मुरीद अब्बास पर फायरिंग करने वाले आतिफ जमान का भाई है। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकार गौस आलम ने आदिल जमान की लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस की मदद की। आदिल जमान की निशानदही करने वाले पुलिस एहलकार गौस पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। सब इंस्पेक्टर गौस पर तारिक रोड अल्लाह वाली चौरंगी पर फायरिंग की गई। मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए।
निशाना सर पर लगाया गया, लेकिन खुश किस्मती से गोली जबड़े पर लगी। सब इंस्पेक्टर गौस को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अहम खबर ये दे रहे हैं कि आदिल जमान की निशानदही करने वाले पुलिस एहलकार गौस पर नामालूम अफराद ने आज फायरिंग कर दी और सब इंस्पेक्टर गौस पर तारिक रोड अल्लाह वाली चौरंगी पर फायरिंग की गई। कराची में नामालूम मुल्जिमान ने बाप और